Hello students, today's topic is Woodward-Fisher rule for alpha-beta unsaturated carbonyl compounds. This rule can be extended to calculate lambda max in alpha-beta unsaturated carbonyl compounds. In a similar manner to Woodward-Fisher rule for dienes we discussed previously, there is a base value to which the substituent effect can be added and lambda max can be calculated using this formula. Lambda max equal to base value plus total contributions of substituent and total contributions of the other type of the groups like the oxochromes and other polar groups. We can calculate lambda max by using this formula. These are the examples of some alpha beta unsaturated carbonyl compounds. This is acyclic enones. Enones means compound containing ene means double bond and on means carbonyl group. So it is not called enones. The first carbon that attaches to a functional group is carbonyl group. So this is the first carbon which is attached to a functional group is alpha carbon, and second carbon atom is known as beta carbon. This is also acyclic alpha beta unsaturated compound, but it is dienone. Dienones means two double bonds are here and the system continuous naming in like alpha, beta, gamma and delta. These are the examples of ring ketones. This is 6-membered alpha beta unsaturated carbonyl compound. This is 6-membered enones, or this is the example of 5-membered enone, means 5-membered alpha beta unsaturated carbonyl compound. Now this is the table for parent values and increments for substituents and groups. Parent values for alpha beta unsaturated acyclic or 6-membered ring ketone. If structure is alpha beta unsaturated acyclic or 6-membered ring ketone, then parent value or basic value should be 215 nanometer. And if alpha beta unsaturated 5-membered ring, this is 5-membered ring ketone, then parent value or basic value should be 202 nanometer. You have to remember these values. For alpha beta unsaturated aldehydes, parent value should be 207 nanometer. So these are the parent values for the 6-membered ring ketone, or we can say alpha beta unsaturated alicyclic compound, or alpha beta unsaturated 5-membered or ring ketone, or alpha beta unsaturated aldehyde. So these are the different values. You have to remember these values. Sorry.
now structural increments, the structural increments for estimating lambda max for a given alpha beta unsaturated carbonyl compounds are: number 1, alkyl substituents or ring residues if present at alpha position, the increment will be 10 nanometer, and if present at beta position, then increment should be 12 nanometer, and gamma or higher positions, then increment will be 18 nanometer. The increment for each exocyclic double bond is 5 nanometer, and double bond extending conjugation is 30 nanometer. If the structure having homoannular conjugated diene, then plus 39 nanometer is added. So this is the increment for the homoannular conjugated diene system. Increments for various oxochromes in alpha, beta and gamma positions are given in this table. Increments for OH according to the positions alpha, beta and gamma are 35 plus 30 plus 50. So these are the increments according to their positions. You have to remember complete table including parent value, increments and oxochromes. Now we will discuss or we will calculate the lambda max for the given structure. अब आपको इस स्ट्रक्चर की लैम्बडा मैक्स कैलकुलेट करना होगा, जैसा कि हमने डाइईन के केस में किया था. सबसे पहले इसमें आप पेरेंट वैल्यू डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द पेरेंट वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रक्चर. तो देखिए, दिस इज द C डबल बॉन्ड O बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप. कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच्ड डबल बॉन्ड अल्फा बीटा पोजीशन पर, तो ये हो जाएगी आपकी पेरेंट वैल्यू. ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द पेरेंट वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रक्चर. ये पेरेंट वैल्यू को हमने यहाँ पर फिर से शो किया है. इससे हमने यहाँ दिखाया गया है. ये देखिए, ये पेरेंट वैल्यू. अब पेरेंट वैल्यू क्या शो कर रही है? दिस इज द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड इनोन. सो द पेरेंट वैल्यू कितनी होगी? 250 नैनोमीटर. नेक्स्ट हम देखेंगे इंक्रीमेंट्स. हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? डबल बॉन्ड्स, सॉरी, हाउ मेनी डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशंस. यहाँ देखिए आप, ये तो आपका पेरेंट वैल्यू हो गया, लेकिन एक ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेजेंट है जो कि इसके डबल बॉन्ड को एक्सटेंड कर रहा है. तो दिस इज द डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन. ये देखिए आप, और ये हमने यहाँ पर इस फिगर में दिखाया है. ये देखिए यहाँ स्ट्रक्चर में, दिस इज द डबल बॉन्ड विच एक्सटेंड द कॉन्जुगेशन. सो प्लस 30 नैनोमीटर आप यहाँ पर ऐड कर देंगे. अब देखिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के बारे में. यहाँ ये जो डबल बॉन्ड है, ये वाला, ये देखिए आप, दिस इज द डबल बॉन्ड. ये जो रिंग बी के किसी कार्बन से आउटसाइड में है, ये दिस इज अ रिंग बी. इसका एक कार्बन ये भी है, इसकी आउटसाइड में ये डबल बॉन्ड है. सो इट इज कॉल्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड. तो हियर वन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट विथ रेस्पेक्ट टू रिंग बी. सो 5 नैनोमीटर आप इसमें ऐड करेंगे.
नाउ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स और रिंग रेजिड्यूज। अब यहाँ आप देखिए बीटा पोजीशन पर दिस इज द रिंग रेजिड्यू बीटा पर, तो 1 रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट एट बीटा पोजीशन। तो बीटा पर आपको वैल्यू पता है, अगर अल्फा पर होता है तो 10, बीटा पर 12 और गामा और हायर पर 18 नैनोमीटर आपको ऐड करना होता है। तो बीटा पर है यहाँ पर, तो ये 12 आपको यहाँ लिखना है, यहाँ पर 12 नैनोमीटर। सिमिलरली गामा पोजीशन पर आप देखिए, गामा पर दिस इज द गामा पोजीशन, ये यहाँ भी हमने इसको बताया हुआ, दिस इज द बीटा पोजीशन एंड दिस इज द गामा पोजीशन। तो गामा पर 1 और ये 2, these are the 2 ring residues present at gamma और डेल्टा पोजीशन पर। दिस इज द डेल्टा पोजीशन, दिस अल्फा देन बीटा पर है एक, गामा पर कुछ भी नहीं है और डेल्टा पर है। तो डेल्टा पोजीशन पर ये 2 रिंग रेजिड्यूज प्रेजेंट है। आप इसे रिंग रेजिड्यू कहें चाहे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स कहें। तो 18 नैनोमीटर इंटू 2 मीन्स 36 नैनोमीटर हो जाएगा। तो नाउ लैम्बडा मैक्स वुड भी कितनी होगी, पेरेंट वैल्यू 215 नैनोमीटर। देखिए डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन इंक्रीमेंट ऐड करिए 30 प्लस 5 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्लस 12 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एट बीटा पोजीशन और 36 मीन्स एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यूज एट डेल्टा पोजीशन। टोटल हो जाएगा ये 298 नैनोमीटर। तो इस प्रकार से हम किसी भी स्ट्रक्चर का लैम्बडा मैक्स हम कैलकुलेट कर पाएंगे। वन मोर एग्जाम्पल इज हियर, कैलकुलेट द लैम्बडा मैक्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो। सबसे पहले आप इसमें देखिए पेरेंट वैल्यू। पेरेंट वैल्यू हमेशा आपको फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड करना है। दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप एंड दिस इज द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप। तो ये हो जाएगी आपकी पेरेंट वैल्यू। ये देखिए दिस इज द पेरेंट वैल्यू, इसको हमने यहाँ पर शो किया है। दिस इज रिंग बी कार्बोनिल ग्रुप और दिस इज द पेरेंट वैल्यू। तो पेरेंट वैल्यू हम किसकी लिखेंगे, फॉर द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड इनोन्स। 6 मेंबर्ड इनोन है ये, इसीलिए पेरेंट वैल्यू कितना हो जाएगा 250 नैनोमीटर। नाउ डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विच एक्सटेंड द कॉन्जुगेशन। तो ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो दिस ये आपको शो किया हुआ है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस 30 नैनोमीटर। नाउ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यूज एट बीटा पोजीशन पर। ये देखिए दिस इज द अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन। बीटा पर ये एक रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है, तो बीटा पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमने ये दिस इज द बीटा पोजीशन, दिस इज द रिंग रेजिड्यू। तो दिस इज 12 नैनोमीटर। नाउ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यूज एज डेल्टा पोजीशन। तो दिस इज द डेल्टा पोजीशन। ये देखिए यहाँ पर ये डेल्टा पोजीशन। तो 1 रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट एट डेल्टा पोजीशन। तो हमने यहाँ कितना लिखा 18 नैनोमीटर। एंड 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट। अब देखिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड किसके लिए प्रेजेंट है, ये तो एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, बट दिस इज द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड विद रेस्पेक्ट टू रिंग ए। देखिए ये रिंग ए है, इसका 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन। तो रिंग ए का जो 6 ये कार्बन है, इसी कार्बन के आउटसाइड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो इससे हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड फॉर रिंग ए बोलेंगे। तो दिस इज द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड फॉर रिंग ए। सो 5 नैनोमीटर आप इसमें ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से लैम्बडा मैक्स वुड भी कितना हो जाएगा, दिस इज पेरेंट वैल्यू 215 प्लस 30 मीन्स डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है, प्लस 12 मीन्स 1 रिंग रेजिड्यूज एट बीटा पोजीशन एंड 1 एट डेल्टा गामा पोजीशन, डेल्टा पोजीशन। तो 18 हो गया यहाँ पर एंड 5 यहाँ पर ऐड करेंगे किसके लिए आप, फॉर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से हम सबको ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 280 नैनोमीटर इसकी लैम्बडा मैक्स होगी। एक एग्जांपल और देखिए आप,
इस स्ट्रक्चर की हमें लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर दिस इज द फंक्शनल ग्रुप CO ग्रुप एंड दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। बट इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है। देखिए यहाँ पर अभी तक हमने 2 6 मेंबर्ड रिंग की बात की थी। नाउ इट इज़ द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड इनोन। इसको हम इनोन बोलेंगे। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है लेकिन 5 मेंबर्ड है। तो जब 5 मेंबर्ड होगा तो पेरेंट वैल्यू कितना हो जाएगा 202 नैनोमीटर। तो दिस इज द पेरेंट वैल्यू। ये देखिए आप। अब इसके दिस इज अल्फा एंड बीटा। बीटा पोजीशन पर देखिए ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो 2 रिंग रेजिड्यूज प्रेजेंट एट बीटा पोजीशन, देयरफॉर 12 इंटू 2 करेंगे आप तो 24 नैनोमीटर हो जाएगा। और यहाँ आप देखिए 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट फॉर रिंग बी। ये दिस इज रिंग बी। बी के इसी कार्बन से ये आउटसाइड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड विद रेस्पेक्ट टू रिंग बी। तो इस तरीके से 5 नैनोमीटर इसमें ऐड होगा। तो लैम्डा मैक्स वुड बी 202। दिस इज पेरेंट वैल्यू। दिस इज 24 बीटा रिंग रेजिड्यूज, 2 बीटा रिंग रेजिड्यूज एट बीटा पोजीशन। तो बीटा पर देखिए 2 रिंग रेजिड्यूज प्रेजेंट है और 5 मीन्स 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। टोटल लैम्डा मैक्स कितना हो गया 231 नैनोमीटर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप किसी भी स्ट्रक्चर का लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको टेबल पूरी रिमेंबर होनी चाहिए। उसको आप पूरी को आप एक बार याद कर लीजिए, उसके बाद आप किसी भी स्ट्रक्चर का लैम्डा मैक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।